Hello and welcome to yet another episode of Pisnet News. In today's episode, we have some really exciting news from the world of automotive, like the launch of the new Skoda Rapid convertible in India, Ford recalled its 1400 Broncos, and a new mid-size SUV from Honda which will rival Creta, and much more. If you are new here, the Piston News is divided into two sections. First is international and second is domestic. Domestic will be in Hindi language, so you can skip to the part where you want to be. I will give timestamps in the description, and also make sure to subscribe to this channel and help me reach to my target of 10,000 subscribers. Now let's start the Piston News. The first is Bugatti's train. So in the recent post, Bugatti told us about how they made the fastest train in 1934 and introduced the world to the true high-speed and high luxury train travel. Now, only one such example remaining in the world, and that exists at Citadud. You know what? I'm not gonna even try pronouncing this, but there is only one such example available, and that's here. You can read it on your screen. By the way, if you wanna read the full article, I will give its link in the description. You can read it right there. Now let's move to the other news. EVs are getting cheaper. The myth that EVs are expensive is slowly but surely going away. And now with the latest price adjustment from Tesla, the entry-level Model Y crossover is now more affordable than average car in US. Besides Model Y, Model 3 has also had its MSRP under average price. Though EV had rough start before, now it looks like they are just doing fine. Up next, we have Ford recalling its 1434 Broncos and Rangers for a defect which could lead to their wheel coming off. So Ford has recently announced to recall its 2023 model of Bronco and Ranger due to a potential problem in the lug nuts. According to Ford, this problem can lead to the wheel detachment and creating a risk of injury or even crash. In the meantime, the instruction will be provided to the owners for its torque verification. The 2024 McLaren 750S revealed. The successor to the McLaren 750S is finally here, and it's called as 750S. It might look pretty similar to its predecessor, but there are some refinements made to it, with 30% of its component being new. The 750 has twin turbocharged 4-liter V8 under the hood with 740 horsepower and 206 mph top speed. Besides, there are two variants of this car launched in the event, one being the coupe and other being the hardtop convertible. The coupe can do 0 to 60 in 2.7 seconds and the convertible can do it in 2.8 seconds. Design wise, the car shares familiar look with its predecessor. But the one thing that can be observed to be redesigned is the front bumper with the addition of extended front splitter. And at the rear, you see P1 inspired center exhaust. So do tell me in the comment section, did you like the 750S or not? The next news is coming from Honda. So Honda confirms a new EV which will be in their mid to large segment. So Honda confirms their first vehicle on its dedicated EV platform which will go on sale in 2025. The new vehicle will be operating on its new E-architecture platform. The company hasn't provided any specification about it for now, so we will have to see that in the coming time. So the last news from the international section is coming from Forza Horizon 5. So in the latest update of the Forza Horizon 5, you will now be able to have new tracks, new cars and other new challenges and events. But the most important is, now you will be able to drive 4 new cars, in which you will be having 2022 Lamborghini Huracan STO, 2019 Porsche Motorsport 935, 2021 Audi RS6 and the concept 2021 Porsche Mission REV. So that was all from the international section. Now let's move to the domestic section. और domestic section की सबसे पहली खबर आ रही है Citroen की तरफ से। तो Citroen इंडिया ने अपनी Citroen C3 Aircross को ग्लोबली प्रीमियर कर दिया है। तो ये कार के बारे में कुछ बातें की जाए तो ये कार को आप ओवरऑल देख सकते हो कि इसकी काफी सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स उनकी C3 SUV से मैच करते हैं, और क्यों ना करे क्योंकि ये उसके ऊपर ही बेस्ड है। बाकी इसके ओवरऑल लुक के बारे में बात की जाए तो आप देख ही सकते हो उसमें कुछ टिपिकल Citroen के जो एलिमेंट्स है वो आपको मिलेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हो उसकी जो ग्रिल है काफी बड़ी है। बाकी इसमें आपको स्प्लिट हेडलाइट्स मिलते हैं जो ऑफ कोर्स बहुत हद तक उसकी C3 हैचबैक से मैच करते हैं। बाकी एक कार का ओवरऑल अगर डिजाइन देखा जाए तो काफी मिनिमल रखा गया है, काफी सिंपल और अच्छी कार लग रही है देखने में। बाकी अगर आप इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, और इसके इंटीरियर में आपको ड्राइवर का जो डिस्प्ले सिस्टम है उसमें आपको 10
7.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा और ये कार इंडिया में सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में लॉन्च होगी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है दोस्तों अभी मारुति सुजुकी की तरफ से, और वो खबर है कि वो इंडिया में जल्दी ही उनकी सबसे महंगी कार लॉन्च करने वाले हैं। मारुति सुजुकी ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि वो इंडिया में उनकी प्रीमियम एमपीवी लॉन्च कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कार आप ऑलरेडी देख चुके हो तो कैसा लगेगा आपको? एक्चुअली आप उसको ऑलरेडी देख चुके हो इन द फॉर्म ऑफ टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, बिकॉज जो ये कार होने वाली है वो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2017 से टोयोटा और सुजुकी का अलायंस बन चुका है इंडिया में, जिसके कारण आप देख सकते हो उनकी कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि बलिनो हो गया, ग्रैंड विटारा हो गई, अंडर डिफरेंट बैच इंडिया में लॉन्च हो रही हैं। मतलब सेम मॉडल टोयोटा अपनी ब्रांड लेबल के अंदर लॉन्च करते हैं, इसको रीबैच कार कहते हैं। बाकी उसी तरह से ये नई कार भी इंडिया में लॉन्च होगी। इसको अभी जुलाई 2023 की लॉन्च डेट मिली है, सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये कार कैसी होगी। हमारी जो अगली खबर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है और मैं अपना इंसिडेंट शेयर करूंगा इसमें, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मैंने ये पोस्ट देखी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि मैंने स्कोडा रैपिड को एज अ कन्वर्टेबल देखा और काफ़ी स्पोर्टी लग रही थी कार, तो मैं काफ़ी खुश हो गया कि स्कोडा एक्चुअली ये लॉन्च करने वाली है क्या। बट मैंने जब पोस्ट पढ़ी देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ द फर्स्ट एवर स्टूडेंट कार प्रोजेक्ट इन द कंट्री, और ये इट इज़ बिल्ड बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप अकेडमिक्स ड्यूअल वोकेशनल ट्रेनिंग इन मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम। मैं लिटरली पोस्ट पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, बट उसके हिसाब से ही इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि देख ही सकते हो इसको कन्वर्टेबल में कन्वर्ट किया था। बाकी इन्होंने इसमें न्यू टेबल स्टाइल टच स्क्रीन ऐड की थी, स्पोर्टी एग्जॉस्ट सिस्टम ऐड किया था, रिट्रैक्टेबल बैजेस, और इस कार को एक फुल्ली ब्लैक एक्सेसरीज से पैकेज करके में दिखाया गया था। वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कार लग रही है, बट बेचने के लिए नहीं बनाई उन्होंने। हमारी अगली खबर आ रही है Volkswagen की तरफ से, एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स Volkswagen ID4 शायद फाइनली इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते तो जो Volkswagen ID4 एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ईवी है जो ग्लोबली कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बट इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं हुई है, एंड द रीज़न बीइंग इट्स अंडर टेस्टिंग। और Volkswagen हेडक्वार्टर से उन्होंने अब तक इसको परमिशन नहीं दी है लॉन्च करने की इंडिया में, बट इसकी जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग शायद मई महीने में इसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये इंडिया में लॉन्च हो रही है। और इसकी टेस्टिंग फेज में रहने के काफ़ी सारे रीजंस है, एंड वन ऑफ दोज रीजंस आर लाइक इंडिया में काफ़ी हॉट वेदर है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड वेदर कई कई जगहों पर है। बाकी इंडिया के रफ रोड्स के बारे में तो हम जानती है, काफ़ी ज़्यादा फाइन ट्यून करने की बात चल रही है इनके सस्पेंशन को इसके लिए, और एक नया प्लेटफॉर्म है Volkswagen की तरफ से, तो ये इसकी टेस्टिंग में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते, और इस कार की इसलिए टेस्टिंग काफ़ी दिनों से शुरू है। बाकी इस कार की प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो है 50 लाख के आसपास। इसमें आपको ऑलमोस्ट 300 हॉर्स पावर मिल जाएगी, एंड इसमें आपको जो रेंज है सिंगल चार्ज में वो है इसमें जो है 480 किलोमीटर्स की। तो ये कार काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी जब इंडिया में लॉन्च होगी। तो लास्ट पे न्यूज़ में मैंने एक पंच की राइवल जो इंडिया की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसका नाम बताया था, जो कि था एक्स्टर। तो दिस वीक उन्होंने एक उसका पार्शियल रिवीलिंग कर दिया उसके लुक का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये इन्होंने फोटो शेयर करते हुए हमें बताया है कि ये कार एक्चुअली में कैसे दिखने वाली है। बाकी इस कार को लेके काफी सारी हाइप तो है ही, बट आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस कार से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी यार सच में i10 ग्रैंड i10 को देख के थोड़ा बोर हो चुकी है। तो ये कार एक काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगी एज अ माइक्रो एसयूवी, और देखते हैं कि ये पंच को किस तरह से राइवल करेगी। सो आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज की आखिरी खबर आ रही है टाटा की तरफ से। रिसेंटली एक वीडियो शेयर हुआ था इंटरनेट पे, जिसमें हम देख सकते हैं कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को हमने कैमफ्लाज के अंदर स्पॉट किया था। बाकी इस कार के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट हम अगर जज करने की कोशिश करें तो लग रहा है कि उनकी जो कर्व कंसेप्ट कार है उसमें से कुछ लुक्स या फिर कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स में डिराइव हो गए। बाकी इस कार की जो एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है इट इज़ अगस्त 2023, और इसमें शायद इनकी जो 1.2 लीटर नई पेट्रोल इनका इंजन ऑप्शन है वो हमें इसमें देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी अपडेट है मैं इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट कर ही दूंगा। अगर आप मुझे अभी भी फॉलो नहीं करें तो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, मैं उसमें स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट देता रहता हूँ। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, और इस नई न्यूज़ हर हफ्ते आएगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना वर्थ इट है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन जरूर दबा देना। बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीक में, टिल देन टेक केयर पिस्टनहेड्स।